تھینک یو جیسس، تھینک یو لارڈ۔ میری بہنیں، بھائی، بزرگ اور بچے سب خوش ہیں، ہیپی ہیں سارے؟ اپنے دونوں ہاتھ ہلا سکتے ہیں۔ او پریز گاڈ۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے اور خداوند یسوع مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آئے آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 13واں باب، 47ویں اور 48ویں آیت جو ہے وہ ہم خداوند کے کلام میں سے سنیں گے۔ کوئی بھی بیٹا بیٹی پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ جو بچے اسٹوڈنٹس ہیں لیول کلاس میں، آسمان کی بادشاہی اسی بڑے جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈالا گیا، اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لی، اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لائے، اور بیٹھ کر اچھی اچھی تو برتنوں میں جمع کر لی، اور جو خراب تھی پھینک دی۔ دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا، فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راہواتوں سے جدا کریں گے، اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ کیا تم یہ سب باتیں سمجھ گئے؟ انہوں نے اس سے کہا ہاں۔ اس نے ان سے کہا، اس لیے ہر قبیلہ جو آسمان کی بادشاہی کا شریک بنا ہے اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانہ میں نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے۔ آمین۔ اس تمثیل میں دریا جو ہے وہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ دریا دنیا کو ظاہر کرتا ہے۔ دریا کس کو ظاہر کرتا ہے؟ دنیا کو۔ جال جو ہے انجیل کا سنایا جانا، گاسپل، ابھی آپ اوپر جال جو ہے ڈالا جا رہا ہے، ان کے خدا کا کلام آپ کو سنایا جا رہا ہے۔ اس میں اچھی مچھلیاں کن کو کہا گیا ہے؟ ایماندار لوگ۔ کن کو کہا گیا ہے؟ اچھی مچھلیاں کن کو کہا گیا ہے؟ جیسے بھیڑ کے بارے میں اور بکریوں کے بارے میں کہا گیا ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ تم میری بھیڑیں ہو۔ تم میری کیا ہو؟ اور بھیڑیں میری آواز کو پہچانتی ہیں۔ بھیڑوں کو ایمانداروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی اور بکریوں کو گنہگاروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور اسی طرح یہاں پر جو ہے اچھی مچھلیاں جو ہے وہ ایماندار لوگ۔ کون سے لوگ ہیں؟ اور بری مچھلیاں جو ہے وہ غیر ایماندار لوگ۔ کیا آپ چاہیں گے کہ بری مچھلی بنے؟ کیونکہ بری مچھلی کے بارے میں یہاں پر غیر ایماندار لوگ۔ دیکھیے میرے عزیزو، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہاللیلویہ۔ خدا نہیں چاہتا کہ آپ بری مچھلیاں بنیں، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کیا کریں؟ اچھی مچھلیاں رہیں۔ اور رومیو 10:17 میں لکھا ہوا ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ کیا ہی خوشگوار ہے ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اور کلام مقدس رومیو 10:17 میں لکھا ہوا ہے کہ بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اس جماعت میں ہر قسم کے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو اس کلام کو سنتے ہیں، اور صاف کلام فرمانا کے پاس ایمان اس سے کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سننے سے۔ اور سننا کہاں سے ہے؟ اس کلام سے۔ یہ کہ خدا کے کلام کی خوشخبری کا جال جو ہے یہ آپ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، اور صاف لکھا ہوا ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ ہاللیلویہ۔ اور جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے پر ایمان نہیں لائے۔ اس جال کی تمثیل میں جو ہے جال دنیا، جال کی تمثیل میں دریا جو ہے یہ دنیا کو ظاہر کرتا ہے، ہم سب لوگ ہیں۔ اور اس سمندر میں ہر طرح کی مچھلی پائی جاتی ہے۔ کون سی مچھلی؟ ہر طرح کی۔
अच्छी बुरी हर किस्म की मछलियाँ इस दुनिया के समुद्र में मौजूद हैं। और यीशु के शिगिर्द क्या करते हैं? इस दरिया में जाल डालते हैं, यानी कि दुनिया को खुशखबरी सुनाते हैं। यीशु मसीह के शिगिर्द हैं जो इस कलाम के जरिए से आप ऊपर डाल जा रहे हैं कि आप इस कलाम को सुनकर सुन ना हो जाए, बल्कि ईमान लाएं, ईमान में मजबूत हों और दूसरों को खुदा के गला में शामिल जो है करने वाले बने। मरकज की अंजील पहला बाब 16 में लिखा हुआ है, और गलील की झील के किनारे जाते हुए उसने शमौन के भाई अंद्रयास को झील में क्या करते देखा था? जाल डालते। वहाँ पर वो जाल डालते क्योंकि वो माहीगीर थे, वो मछलियों का कारोबार करते थे, मछलियों को पकड़ते थे, ये उनका बिजनेस का काम था। और यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? आओ मेरे पीछे आओ। क्या करो? मेरे पीछे आओ तो मैं क्या करूँगा? मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। हालेलुया! मैं तुमको क्या करूँगा? आदमगीर बनाऊंगा। और यूं यीशु मसीह के जो शिगिर्द थे वो मछलियों को छोड़कर इस दुनिया के समुद्र में रूहों को जो है वो बचाने लगे। हालेलुया! खुदा आज भी मसरूफ लोगों को चुनता है अपनी खिदमत के लिए, तो आसमान की बादशाह के लिए रूहों को जीतने का काम करें। हालेलुया! मेरे अजीजों, जब इस दुनिया में अंजील सुनाई जाती है तो हर शख्स होता है, तमाम मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, बच्चे, हर एक कोई आज के इस कलाम को सुन रहा है। हर शख्स सुन रहा है, और वो औरत है, मर्द है, लेकिन सुनकर अपना अपना रद्द अमल जो है वो देता है। जिस तरह यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस में एक बीज बोने वाले की तफसीर में 4 किस्म के जो बीज हैं जो ज़मीन पर है पर पड़ता है, और उनके बारे में यहाँ पर यीशु मसीह ने खुद ही एक तफसील दी। पहला कौन सा है? यदि राह के किनारे वाले वो लोग हैं जो इस कलाम को सुनकर भूल जाते हैं। शरीर जो है वो कलाम को सुन चला लेता है। दूसरा जो है वो है पथरीली जमीन वाले वो लोग जो दिल की शक्ति की वजह से कलाम को जड़ जो है वो अपने अंदर नहीं पकड़ने देते। तीसरा, झाड़ियों वाले वो लोग जो दुनिया की फिक्रों के स्वर से इस पल को, कलाम को अपनी जिंदगी में लाने का मौका जो है वो नहीं देते। चौथा जो है अच्छी जमीन वाले वो लोग हैं जो कलाम को सुनते हैं, हालेलुया, और ईमान लाते हैं और फिर फल देते हैं। हालेलुया! असल बात जो है ईमान लाते हैं और क्या करते हैं? फल देते हैं। यानी हर किस्म के लोगों को जो है वो अंजील तो सुनाई जाती है, और समुद्र में यानी दुनिया में अच्छे बुरे लोग कलाम को सुनते हैं और अपना अपना जो है वो रद्द-ए-अमल देते हैं। ये बड़ा जाल यानी खुदा के कलाम का जाल पूरी दुनिया में जो है ये डाला गया, यानी आसमान की बादशाही, ये बड़ा जाल दुनिया में, और इस दुनिया के अच्छे और बुरे लोग जो है सब कलाम को सुन रहे हैं। कलाम की इस वक्त पूरी दुनिया में मनाती हो रही है, मगर जो सच्चे दिल से अपने हाथ से ईमान लाता है और रास्ता लेके चलता है और कलीसिया की फेलोशिप में उसकी रफाकत में रहता है, रूह कुदस की गुरबत में अगर वो रहता है, तो ऐसा शख्स इस जाल की अहमियत को समझता है। हालेलुया! यानी खुदा के कलाम की अहमियत को कि ये खुशखबरी से आसमान की बादशाही में जो है वो दामन करती है। हालेलुया! हालेलुया! इस बड़े जाल से हर किस्म की मछली जो है वो तो आ ही जाती है, मगर क्या है फिर उनको अलग अलग जो है करना पड़ता है। यानी खुशखबरी सुनने के बाद लोग कलीसियाओं में आ जाते हैं, मगर उनके फल
पाएंगे कि वो सच्चे ईमान वाले और राजपाली में हैं, या वैसे ही कलीसिया के रजिस्टर में वो रजिस्टर में सिर्फ मौजूद हैं। ऐसे लोग भी मौजूद हैं। ऐसों को क्या करेगा? कलाम ये फरमाता है आखिरी को अलग कर देगा। ऐसे लोगों के लिए क्या रखा है? आज जो हम के आते कि ऐसे लोगों को अलग कर देगा। जैसे खेत में देखिए कि दुश्मन कड़वे बीज जो है वो बो देता है, और जब पत्तियां निकलती हैं तो फिर फल पैदा होता है, तो पता चल जाता है कि अच्छे पौधे के साथ जो है कड़वा फल भी जो है वाला पौधा भी मौजूद है। और जब दोनों बढ़ते हैं तो हमें ये तमसील हमें बताती है कि पहले कड़वे फल वाले को क्या करेंगे? काट कर अलग कर दो, फिर अच्छे बीज वाले को कर देंगे जमा कर। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही बड़े जाल की तमसील में हर तरह की मछली जाल में आएगी, जबकि इस आसमान की बादशाही में हर कोई दाखिल होने की कोशिश करेगा। और लिखा हुआ है साफ साफ यीशु ने कहा कि जो मुझसे ऐ खुदावन कहते हैं, क्योंकि पकी और कृषि भी जब यीशु मसीह इस ज़मीनी जीवन में थे उनको डट कह दिया था, जो मुझसे है खुदावन कहते हैं, उनके बारे में क्या लिखा है कि हर एक कोई आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा, मगर वही जो मेरे बाप आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है, वही आसमान की बादशाही में दाखिल होगा। बस मेरे अजीजों, आपको पहचान दी गई है खुदा के कायमों की, खुदा के लोगों की, इनके फलों से तुम इनको पहचान लोगे कि ये वाकई सच्चा खाना है या चौथे दिन तीसरे दिन कोई गड़बड़ करने वाला है। इनसे बचाने के लिए खुदा ने आपको आगाह किया हुआ है कि रूह के साथ भी चलो और अक्ल के साथ भी चलो। हालेलुया। यीशु मसीह खुद इस तफसील में मौजूद है और लिखा हुआ है मत्ती 13:48 में, और जब वो घर गया तो उसे किनारे पर फेंक लाए और बैठ कर अच्छी जो है वो बर्तनों में जमा कर दी और जो खाद थी फेंक दी। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा, फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्ता से जुदा करेंगे और कहाँ डाला जाएगा? आग की भट्टी में डाला जाएगा। कहाँ पर डाला जाएगा? आग की भट्टी में डाला जाएगा। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। वहाँ पर रोना और दांतों का, हम यहाँ पर गलती जो है अशेष से ढूंढते हैं, मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, ये सब कुछ यहाँ पर रह जा रहा है। आसमान की बादशाह के लिए हमने अपने आप को तैयार करना है। जिस तरह वो गरीब लाजर था और मेरा ईमान है बेशक वो कमजोर था, मसूरों से भरा हुआ था, बीमार था, लेकिन उसकी रूह बाप इब्राहिम की गोदी में सीधा वो जन्नत में गया। गुर्बत में हो, बीमारी में हो, किसी परेशानी में हो, ये दुख हमारा कुछ नहीं जो है ये बिगाड़ सकता। मेरे अजीजों, अगर एक मछली पकड़नी हो तो क्या करते हैं? कुंडी लगानी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? कुंडी लगानी पड़ती है, कुंडी डालते हैं। और ज़्यादा मछलियाँ पकड़नी हो तो फिर क्या होता है? फिर जाल डाला जाता है। फिर क्या डाला जाता है? जाल डालना पड़ता है। आज हम सब ने अपने खादमों के साथ आप लोग मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? रूह को जीतना है। हालेलुया। और शागिर्द जो है मिलजुल कर जा डाले, यानी कि कलीसिया और चर्च की खिदमत पर जितने भी लोग मौजूद हैं, सिर्फ पास्टर का काम नहीं है, आप लोगों का भी काम है। उनके साथ मिलकर क्या करें? इस कलाम की खुशखबरी का जाल डालने लोगों पर, यानी कसरत से रूहों को जीते। हालेलुया। शीप कोर्ट सेल सिस्टम अपने काजन के साथ एल्डर डीकन दूसरी जो टीमें हैं एक सिस्टम बनाए और सिस्टम के जरिए से कलीसिया का हर मेंबर जो है, हर मेरी बहन, हर मेरी माँ, हर मेरा बुजुर्ग, हर बेटा, हर मेंबर जाल डालने में मदद करता है और मिलजुल कर जाल डालते और मछलियाँ
पकड़ते हैं, जिस तरह शागिर्दों ने मिलजुल कर खुदा के कलाम की खुशखबरी का जाल डाला और आज पूरी दुनिया में जो है खुदा का कलाम मौजूद है। मेरे अजीजों, लूका 4:7 लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब कलाम कर चुका तो शमा उनसे कहा कि गहरे में ले चल। कहाँ ले चल? गहरे में। तुम शिकार के लिए अपना जाल डालो। वो बेचारे कई सारी रात मछलियाँ पकड़ते रहे, लेकिन मछलियाँ उन्हें ना मिली और यीशु आ गया। यीशु ने उनसे कहा कि गहरे में ले चल और शिकार के लिए अपना जाल डालो। और ये कहा, उन्होंने जाल डाला तो मछलियों का एक बहुत बड़ा घोल जो है वो घेर लाए। हालेलुया, हालेलुया। और वो जब बहुत बड़ा घोल घेर ला रहे थे तो पुकार रहे थे, आओ हमारी मदद करो। दूसरों को कह रहे थे, आओ हमारे साथ दो, आओ हमारी मदद करो। इसी तरह अपने पानी के साथ आप मिलकर दूसरों को साथ बुला रहे, आओ हमारी मदद करो कि हम मिलकर आसमान की बादशाह के लिए हम लोगों को जीते। हालेलुया। आज हम सब ने मिलकर क्या करना है? खुशखबरी को सुनाना है। क्या करना है? खुशखबरी को हमने सुनाना है, मछलियां पकड़नी है, यानी रूहों को हमने मिलकर जीतना है। शागिर्द यीशु मसीह पर ईमान लाए और आलमगीर बन गए। हालेलुया। मगर फिर क्या करने लगे? मछलियों का शिकार करने लगे। और मसीह यीशु जब तबरियास की झील पर उन पर जहर हुआ तो उनको शिकार भी दिया और वापस उन्हें रूहें जीतने के लिए मुकाशवा दिया, खिदमत के लिए खुदा यीशु मसीह ने आभारा। आज मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने आपको बड़े अख्तियारात दिए हैं। आप अपने अख्तियारात को समझते नहीं हैं, आप अपनी पावर को नहीं समझते हैं, जिसके बारे में यीशु मसीह ने ही कहा है। अगर आप सच्चे उसके शागिर्द बन जाएंगे, सच्चे उसके खादम बन जाएंगे, सच्चे उसके एल्डर बन जाएंगे, सच्चे उसके लेनर बन जाएंगे, सच्चे आप उसके मेंबर बन जाएंगे, जब वो आपके साथ लग जाएगा तो लिखा हुआ कि जो को तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांधा जाएगा, जो को तुम जमीन पर खोलोगे वो आपके लिए आसमान पर खोला जाएगा। हालेलुया। बांधने का और खोलने का मुकम्मल इख्तियार आप लोगों के पास है। हालेलुया। मैं अपना इख्तियार इस्तेमाल करता हूँ अपनी जिस्मानी खिदमत में भी, रूहानी खिदमत में भी, जहाँ पर भी खुदा मुझे इस्तेमाल करता है, मैं उस इख्तियार के साथ कलाम करता हूँ, मैं उस इख्तियार के साथ काम करता हूँ। मेरे पास पैसा रुपया ना हो तो मैं इख्तियार खुदा के उस हुक्म को करता हूँ। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए वो खोलता है। अभी पिछले दिनों में हमारे पास कोई पैसा नहीं, मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम भाइयों का, बहनों का, जिन्होंने यहाँ पर चर्च में अपना हिस्सा डाला और चर्च का हमने मंथली जो कार्डों का हदिया था, जो संडे सर्विस का पूरा हफ्ता सवाल होता है विश्व को, उसमें वो भी सारा चंदा हमने और अपने गरीब भाइयों के लिए जो बेघर थे, सलाब की वजह से परेशान थे, वहाँ पर एक ज़्यादा भी हम दे सकते तो एक वक्त का खाना जो है वो वाली प्राइस चर्च की तरफ से वहाँ पर दिया और 40 सूट थे जो वहाँ पर बेटियों को, बहनों को वहाँ पर दिए गए। ये ईमान होना चाहिए। आप अपने अंदर अपने ईमान को मजबूत कर ले और देखिए आपके घर में से दुख ज़्यादा रहेगा, बीमारी दूर हो जाएगी, घर में मोहब्बत पैदा होगी, मियाँ बीवी अज़वाजी जिंदगी में कोई दुख नहीं होगा, एक दूसरे का साथ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम शहर सभी औरतों में से और जब वो कहने के लिए कर गए तो पता कितना वो भरा हुआ था। जब उन्होंने बाहर निकाला 153 इतनी मछलियाँ थी जो साहिल रात कुंडी भी लगा रहे थे, कुंडा भी लगा रहे थे, जाल भी फेंक रहे थे, एक मछली नहीं आ रही थी। लेकिन यीशु मसीह के कहने पर जब उन्होंने जाल डाला तो 153
मछलियों से भरा हुआ जाल जो है वो किनारे पर, कहते हैं दुनिया की तकरीबन जो है छोटे बड़े 170 के करीब छोटे बड़े मुल्क हैं। यानी इस दुनिया में मुल्क को खुशखबरी सुनाना है, दुनिया के हर मुल्क को, और ये सब अच्छी बुरी मछलियाँ जाल में आ जाएंगी, मगर दुनिया के आखिरत में अच्छी और बुरी दोनों को अलग अलग कर दिया जाएगा। इसलिए हमने बुरी मछलियों में शामिल नहीं होना, हमने अपने पास के खिलाफ चहलगोइयाँ नहीं करनी, हमने बुरे लोगों के साथ रफाकत नहीं रखनी, हमने बल्कि अच्छे फेलोशिप रखनी है। खुदा के खौफ में रहना है। खुदा का खौफ हिम्मत और भलाई देता है, खुदा का खौफ तरक्की देता है, खुदा का खौफ आपके पैसे पर बरकत देता है, खुदा का खौफ आपके औलाद को बरकत देता है, खुदा का खौफ मियाँ बीवी में रफाकत रखता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुशखबरी का ये जाल दुनिया के समुद्र में आ पड़ा। हालेलुया। हमें इस जाल के जरिया से आसमान की बादशाहत में हमने दाखिल होना है। हालेलुया। और अच्छी रासबाजी वाली जिंदगी बसर करनी है। कलीसिया में रहकर शामिल होकर हमें अच्छा फल लाना है। क्या ये खुशखबरी का जाल आप पर पड़ा है? कितने लोग हैं बता सकते हैं? खुशखबरी का जाल किधर पड़ा है? अपना हाथ हिला कर बता सकते हैं। दोनों हाथ हिलाएं आप खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया। खुशखबरी का जलाल जो इस वक्त खुशखबरी का जाल आप पर पड़ा है, और आपका क्या, आपने क्या रद्द-ए-अमल, ये भी आपने देखना है। और खुदा का कलाम ये फरमाता है, तब उसने फरमाया, ये बड़ी खूबसूरत है हिजकिय्याह की किताब 49 बाब उसकी 8 से 10 आयत। तब उसने मुझे फरमाया कि ये पानी मशरिकी इलाके की तरफ बहता है और मैदान से होकर समुद्र में जा मिलता है, और समुद्र में मिलते ही इसके पानी को शीरी कर देगा और मछलियों की बड़ी कसरत होगी, और यूँ होगा कि माहीगीर इसके किनारे खड़े रहेंगे। इसकी मछलियाँ अपनी अपनी जिन्स के मुताबिक कसरत से होगी। हालेलुया। आइए मेरे अजीजों, खुदा के आस्ताना से दरिया यानी कलाम का सोता हम तक दुनिया में जाल की तरह आ पड़ा है। हालेलुया। ये आसमान की बादशाही आ पहुंची है, और माहीगीर जो है वो इस किनारे खड़े होकर मछलियां पकड़ रहे हैं। आज खुदा का शुक्र है, जब हमने ये चर्च शुरू किया था तो सिर्फ 1-2 लोग थे, टूटा हुआ कमरा, और ये चर्च आज इसी इलाका में देखिए, ये दुनिया की में उसको खुशखबरी का जाल पड़ा हुआ है कि आज 2 चर्च हैं इसी इलाका में। क्या है? 2 चर्च हैं, और 2 मेंबरों के बजाय सैकड़ों के हिसाब से मेंबरशिप है। हालेलुया। हालेलुया। ये है आसमान की बादशाही आ पहुंची है। और मेरे अजीजों, खुदा मसीह के शागिर्द रूहों को इस दुनिया में से गुलाम से निकाल रहे हैं, क्योंकि दुनिया बिगड़ी हुई है, दुनिया गुनाह में पड़ी हुई है, दुनिया बिदअत में पड़ी गई है, दुनिया आटा बेचती है, आटा कहाँ से मिल रहा है, राशन कहाँ से मिल रहा है, उस तरफ भागते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बड़ा शहर से मीठा और कुंदर से कीमती है। बस हमें अच्छी मछलियों की तरह आसमान की बादशाही में दाखिल होना है। हालेलुया। कितने हैं जो आसमान की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं? कुछ तरह थोड़े हैं, ऐसे आती हो, ऐसे करें, पता चले यीशु मसीह की देखे कि मेरे ये लोग हैं जो आसमान की बादशाही के अंदर तड़प है। ये अच्छी तौबा का इकरार है, और अच्छे दिल से ईमानदार ठहरकर रास ठहरना है।
मसीह का खून तमाम गुनाहों से निजात देता है। हालेलुया। यीशु मसीह का खून क्या है? तमाम गुनाहों से हमें निजात देता है। लहजा कुर्सी पहला बार उसकी 5वीं आयत से 7वीं आयत में लिखा हुआ है, ईमान लाओ और कुछ अभी के मुताबिक फल लाओ। हालेलुया। इस नीड की हुई चीजों के स्वाद से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी है। कहाँ रखी है? जमीन पर नहीं है। जमीन पर कीड़ा खा जाता लग जाता है, जंग लग जाता है, कीड़ा खा जाता है। कहाँ पर जमा करना है? आसमान पर। इस नीड की हुई चीजों के स्वाद से जो तुम्हारे वास्ते कहाँ रखी हुई है? आसमान पर रखी हुई है, जिसका जिक्र तुम इस खुशखबरी के कलाम हक में सुन चुके हो। तुम्हारे पास पहुंची है, जिसे सारे जहान में भी फल देती है और तरक्की करती है। हालेलुया। ये कलाम के मुंह की बातें हैं। सो मेरे साथ मिलकर कहाँ 2 थे, 3 हुए, 4 हुए, आज सैकड़ों के हिसाब से इस एरिया में आपकी मेंबरशिप है। खुदा के इस आस्ताना से ये दरिया यानी ये कलाम का सौदा हम तक दुनिया के जाल की तरह बढ़ चुका हुआ है। हालेलुया। इस कलाम को कबूल करें, यीशु को कबूल करें, जिंदगी पाए, कसरत से जिंदगी पाए और उसे दुख जाते रहेंगे। तुम्हारे दूर हो जाएंगी, मोहब्बत जो ठंडी पड़ चुकी है, मोहब्बत पैदा हो जाएगी, अबलीस शर्मिंदा हो जाएगा। अबलीस का हमारे ऊपर कोई इख्तियार नहीं है और लिखा हुआ है, अबलीस का मुकाबला करो तुमसे बात करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज का ये जो पैगाम था क्या था? बड़े जाल की तफसील। कौन सी तफसील थी? बड़े जाल की। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें बरकत बख्शे, हमें तहकीक और ताकत अता फरमाए कि हम बुरी मछलियों में से निकल कर अच्छी मछलियों में शामिल हों और आसमान की बादशाहत में दाखिल होने के लिए किस तरह नाजर दाखिल हो गया। बेशक हम दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में, बीमारी में हैं, खुदावंद का हमें कबूल करेगा, जन्नत में वसीला लेकर जाएगा। बाप इब्राहिम की गोद में आओगे, खुदा हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत देगा।